everyone, how you all are? I hope you all are well and doing good. Our today's topic is very important and it is directly related to your life. So this is Honey and let's start the video. The topic of the video is, this is chapter number 5 of grade 2 and the subject is EVS. The name of the chapter is Fun and Games. Okay, so as you can understand with the heading of the chapter, fun and games are the very important and essential part of our day-to-day life, because if I say the healthy mind breeds a healthy body and vice versa. This is the sentence which is said by a scholar man, and he said a healthy mind breeds a healthy body and vice versa. Means अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तभी आपका माइंड हेल्दी होगा, और अगर आपका माइंड हेल्दी है तभी आपकी बॉडी हेल्दी होगी. तो both two things are correlated to each other. Okay, so it is very, how can we cope up with the two things? हम दोनों चीज़ों को एक साथ कैसे रख सकते हैं अपने पास? So today we will discuss this thing in this chapter. Okay, so let's start. So with this, for this, to get the healthy body, it is very important that we need to do exercise on the daily basis. Okay, so few person thinks that exercises are boring and they don't want to do. So the games are the perfect alternative of exercise, because games are one kind of exercise too. Okay, so lot of games are there which are the primary source of huge physical activities. Okay, for example, if you are playing hockey, so you need to bend your back and you have to run very fast and use all your potential to do goal. Okay, and same thing in the other games too. Okay, so this is very important that you need to do all, you need to use all your potential to win the game and to do whatever you want. Okay, so fun and games is the primary thing. As you don't want to exercise, so you can opt for games because they are very important, and if you are playing, that means you are doing exercise also. Okay, so fun and games are important as work and study. Okay, so two things are there in your life. First one is study. If you are a student, so primarily your first priority should be study. But nowadays, as you are studying, so one thing should be you should keep in your mind that study and sports go together, they are parallel. Okay, if you are good in study and not good in sports, so this is not a good thing, and if you are good in sports and not good in the study, this is also not a good thing. So you should keep both the things parallel. Okay, so for this you have to pay attention on the both things. आपको अपना टाइम जो है वो डिवाइड करना होगा इस तरीके से कि आप स्पोर्ट्स में भी ध्यान दे सकें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे, और बॉडी हेल्दी रखने के लिए आपको स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, और आपको करियर बनाना है, मार्क्स अच्छे लाने हैं, और आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा करें स्कूल में और एक ऑलराउंडर स्टूडेंट बने, तो उसके लिए आपको स्टडी करना भी कंपलसरी है. ओके, तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि अगर आपको कभी भी ये फील होता है कि आपने पूरे दिन स्टडी की है और आप उस समय बोर फील करते हैं, सो एट द टाइम व्हेन यू फील बोर, it was the perfect time to use your energy and recharge your energy by playing. Okay, so sometimes you can play different every time you can play different games on the daily basis. Okay, and you can see this कि स्कूल में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा आप सोच सकते हैं कि स्कूल में भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है इस चीज़ पर कि बच्चा खेले भी अच्छे से, तो उसके लिए गेम्स आवर भी आपके स्कूल में होता है. वीक में जनरली ट्वाइस इन अ वीक गेम्स आवर इज देयर ऑल्सो. ओके, सो it is very important that you pay attention on the sport area also. So games are of two type. मैंने आपको बताया कि गेम्स जो होते हैं वो आपके माइंड को और बॉडी को दोनों को फ्रेश रखते हैं, बिकॉज एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपका ब्लड जो है वो पंप होता है, और जब ब्लड पंप होता है तो उससे आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी आती है. ओके, आप ज़्यादा पानी पीते हैं, ज़्यादा अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं.
और उस वजह से आपकी गेम्स खेलने की वजह से आप मेंटली भी स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपका माइंड भी हेल्दी होगा। ओके, बिकॉज दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एक ब्रदर और एक सिस्टर होते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि गेम्स के टाइप्स, 2 टाइप्स ऑफ गेम्स आर देयर। वी प्ले सम गेम्स इन द ओपन फील्ड, 2 टाइप्स ऑफ गेम्स आर देयर। फर्स्ट वन आर द आउटडोर गेम्स। अब आउट से आप समझ सकते हैं आउट और इन, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। आउट और इन क्या होता है? आउट होता है दे आर अपोजिट टू ईच अदर। आउट की अगर बात करें तो बाहर, और इन की बात करें तो अंदर। तो जैसा कि आप नाम से खुद अज्यूम कर लेंगे, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन, बट स्टिल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू बिकॉज इट इज द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। सो कीप दिस थिंग इन द माइंड दैट आउट मीन्स बाहर। तो जो भी गेम विच वॉट एवर द गेम्स यू प्ले आउटसाइड ऑफ योर होम or you play in the open area, that means they are outdoor games. Okay, so outdoor games are running, flying kites, hopscotch, riding bicycle, cricket, football, volleyball, hockey. Okay, and the swimming, all games are outdoor games. We call them outdoor games. Okay, so outdoor games are very good exercise because we get plenty of fresh air and when we play outside. Okay, तो जब भी आप whenever you go out for play, you take lot of fresh air from the environment. Okay, and especially when you play in the morning, it is the big source of energy. Okay, so we play some games inside the our inside means in means अंदर। अभी मैंने आपको बताया 2 words are opposites. So outdoor आपको समझ में आ गया होगा. So now we are going to the indoor. Indoor games are the games which we play in the house or within the area. Okay, so ludo है, snake and ladder है. मेरा favorite game है snake and ladder. I love that game. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी snake और ladder वाले गेम में आप देखते होंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज माई फेवरेट गेम स्नेक एंड लैडर। आप थोड़ा सा इसके बारे में आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, और आई नो आपको पता भी है इसके बारे में, फिर भी थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज दिस इज माई फेवरेट गेम। आप भी मुझे मैसेज करके बताइएगा कि विच इज़ योर फेवरेट इंडोर गेम। तो यहाँ कुछ स्नेक्स होते हैं, 1 to 100 तक यहाँ काउंटिंग होती है, और स्क्वायर शेप में ये होता है, और एक माउंट बोर्ड पर इसको डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पर कुछ स्नेक्स होते हैं, कुछ लेडर्स होती हैं, और डाइस से हम इस गेम को खेलते हैं। एज लूडो वी प्ले विद द डाइस, द सेम वे वी प्ले दिस गेम विद द डाइस ऑल्सो। सो नंबर्स जो आते हैं डाइस में, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना जो वहाँ पर जो प्लास्टिक वाला जो सर्कुलर जो होता है, जो जिससे हम इसे प्ले करते हैं, वो हमें इससे चलना होता है। ओके, तो जब हम इसे खेलते हैं तो जहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा जो यहाँ पर आया फॉर एग्जाम्पल मैंने 97 गेट किया, तो यहाँ से मेरा ये स्नेक मुझे काटेगा और मैं वापस से 60, ये जहाँ भी जा रहा है ये 76 पे जा रहा है तो मैं 76 पे आ जाऊंगी। ठीक है, और अगर मैं 20 अगर मैं यहाँ आई 3 पर आई तो 3 पर ऑटोमेटिकली मैं 39 पे चली जाऊंगी। तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। आई लव दिस गेम। सो क्या ही कहूँ, मुझे बहुत पसंद है ये गेम। ठीक है, तो ये इंडोर गेम का एग्जाम्पल है। इसे आप कभी भी घर के अंदर या कहीं पर भी आप इसे खेल सकते हैं। कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं कि इसके लिए आपको बाहर जाना है, और इट इज अ बूम, इट इज़ अ बर्स्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। ओके, सो खेल आप ट्राई कर सकते हैं, आपके पास होगी, आप ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली। तो अगर बात करें कि कुछ गेम्स ऐसे होते हैं, फ्यू गेम्स आर देयर विच वी कैन प्ले इन द इंडोर एज वेल एज आउटडोर। ओके, सो बैडमिंटन की अगर बात करें तो आप बैडमिंटन को आप घर के अंदर भी खेल सकते हैं और घर के बाहर भी आप बैडमिंटन को खेल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे गेम्स होते हैं हमारे पास जो हम विद इन और आउटसाइड, इन द हाउस और आउटसाइड द हाउस हम वी कैन प्ले दैट। सो कंप्यूटर गेम्स की बात अगर मैं करूं तो दे आर ऑल्सो वन काइंड ऑफ इंडोर गेम्स, बट दे आर वेरी हार्मफुल टू यू। Nowadays you are using mobile phone for your studies, but take your mobile phone just for study purpose only, and do not spend lot of hour for playing games and for do unnecessary things and watching the useless videos, watching cartoons for long hours, because these are things are very harmful to you. Kids, these are things are very harmful to you. You can understand this thing that
screen time is matters a lot. Okay, as you can understand, if you are spending lot of time on the mobile screen or computer screen, it will harm your eyes, okay, as well as your brain also. So अगर आपको indoor game खेलने ही है तो lot of options and are there. चेस है, इन द चेस लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कैरियर आर ऑल्सो देयर. ओके, तो कोई भी गेम अगर ऐसा है जिसको आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप उस पर फोकस करिए, ना कि वीडियो गेम्स पर और कंप्यूटर गेम्स पर फोकस करें, बिकॉज आपकी आईज जो हैं वो उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं और ब्रेन भी अफेक्ट होता है. आप डिसीजंस बहुत जल्दी नहीं ले पाते हैं उसके बाद, ठीक है, क्योंकि आपका सारा फोकस जो है वो कंप्यूटर गेम्स पे लग चुका होता है एक टाइम के बाद. और अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका ब्रेन उस चीज़ से अफेक्ट होता है. तो आपको समझना चाहिए इस चीज़ को. अब अभी कुछ टाइम की बात है, आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आप ये चीज़ सोच के चलिए कि आपका जब स्कूल खुलेगा तब आपको इतने लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टडी नहीं करनी होगी फ़ोन पर. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत टाइम तक आप वीडियो गेम्स खेलें या फिर अननेसेसरी वीडियोज़ वॉच करें. ओके, सो प्लेइंग गेम इज़ अ फन, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि एक मज़ा है अपने आप में खेलने का. लेकिन गेम्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम इंजॉय करते हैं घर में बैठकर या बाहर जाकर. सो हेयर आर फ्यू पिक्चर्स विच इंडिकेट दैट lot of things are there in the life and we can get lot of entertainment and amusement from there, and lot of moral lessons are also there if you are doing something. Okay, so here I will explain you. The boy is watching cartoon, but आपके timings should be decided. Timings should be decided for watching movies and videos and playing cartoons. Okay, because हर चीज़ अगर आप लिमिट में करेंगे तो वो बेनिफिशियल है, और अनलिमिटेड अगर कोई भी चीज़ होती है तो वो इम्बैलेंस कर देती है बॉडी को. ओके, तो इम्बैलेंस आपको अपनी लाइफ में नहीं लाना है. सो फ्यू थिंग्स आर देयर. विजिटिंग फेयर, सर्कसेस एंड अम्यूजमेंट पार्क. आपको याद होगा लास्ट ईयर वी वेंट टू द पार्क. आपको याद होगा हम पार्क गए थे, वहाँ पर बहुत सारे स्विंग्स थे, डांस हुआ था, डीजे लगा हुआ था. तो इसी तरीके से आपको ले जाया जाता है चिल्ड्रन डे पर फ्रॉम द स्कूल साइड ट्रिप पर. तो वही मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, वही मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि वो भी एक फ़न का तरीका है, एक अम्यूज़मेंट वाली चीज़ है. आप उसको गेम्स के ऑल्टरनेट के तौर पर देख सकते हैं. ओके, सो going for picnic with the family members or with the friends, going to the zoo, okay, to see the animals. Okay, so visiting relatives and friends. अगर आप कभी भी अपनी नानी जी के यहाँ जाते हैं, नैनी हाउस जाते हैं इन द वैकेशंस, so this is also a fun. So take it as a fun and don't waste your time at that time in the movies and in the video games. So spend your time with your grandparents at that time, and if you are going to someone's house, sit silently. आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शोर नहीं करना होता, उनके घर की चीज़ों को आपको ख़राब नहीं करना होता है, और आपको वहाँ की किसी भी चीज़ को टच भी नहीं करना होता है, बिकॉज दीज आर द एटिकेट्स जो ये प्रूव करेंगे कि आप एक अच्छे बच्चे हो. तो कभी भी आप किसी के घर पर जाएंगे तो आपको उनकी कोई भी मटेरियल्स टच नहीं करने हैं, और कोई भी ऐसी न्यूसेंस क्रिएट नहीं करनी है कि वो उससे परेशान हो जाए. ओके, तो आप इंजॉय कीजिए जब आप किसी के घर जाते हैं, बट डू नॉट मेक न्यूसेंस ओवर देयर. ओके, एंड जू आप जा सकते हैं, ऑब्वियसली जाते होंगे. रीडिंग स्टोरी बुक्स इज द बिगेस्ट थिंग विच कैन इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी. अगर आप वीडियो गेम्स खेलने की बजाय अगर आप बुक्स को रीड करते हैं, स्टोरी बुक्स को रीड करते हैं, बिकॉज अब आप बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं, दे कैन स्टडी, दे कैन रीड इजीली हिंदी, इंग्लिश, यू कैन रीड. सो इफ यू आर एबल टू, देन यू शुड स्टार्ट रीडिंग स्टोरी बुक्स. आपको अभी से छोटी छोटी स्टोरी बुक्स को रीड करने की हैबिट अपने अंदर डालनी होगी. दिस कैन बी प्ले अ वेरी एसेंशियल रोल इन योर लाइफ, and your life can change dramatically with that, because जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पता लगती जाएंगी, एक्स्ट्रा पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट होगा आपके अंदर, एंड इट कैन बी अ माइलस्टोन इन योर लाइफ. तो छोटी छोटी स्टोरी बुक होती है, फैंटम बुक है, चाचा चौधरी है, यू कैन रीड दैम. अगर बात करें तो पेंटिंग भी आप कर सकते हैं.
बहुत सारे बच्चों को ड्राइंग, पेंटिंग में, स्केचिंग में, क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट होगा, तो आप वो भी कर सकते हैं, है ना। तो आई होप, मुझे आप लगता है कि अब आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चैप्टर का सम अप ले लेते हैं, समरी देख लेते हैं। फन एंड गेम्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितनी की स्टडी है। सो दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर एंड दे आर पैरेलल। Okay, so and the next one is there are different kind of game we play. As I told you, two types of games are there: indoor games and outdoor games. Third one are few games are there which can be play in the inside and outside too. Okay, like a badminton. तो open area में the games we play in the open area are called outdoor games, and the games we can play in the in our house or in the rooms. Or somewhere else, not outside, so they are called indoor games. Okay, so going to the circus, fair, watching movies, fair होता है मेला, circus आपको पता होगा, टेलीविजन आपको पता होगा, पिकनिक्स आपको पता है, अम्यूजमेंट पार्क आपको पता है, you know everything because you people are very very intelligent. Okay, so going to the circus, ये सब भी एक enjoyment के आपके alternates हैं और you can use them. आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। विद दिस यू कैन गेट द PDF ऑफ द नोट्स, आपको पूरे चैप्टर की PDF मिल जाएगी इसके साथ। एंड एज यू विल गेट द एक्सरसाइज ऑल्सो, यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज, यू कैन डू बाई योर सेल्फ एंड ऑल्सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स लाइक योर मदर। एंड अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।